सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर। ठीक है सर। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Morning, sir. Good Good morning, morning. Good sir. morning. Good morning. Good morning. How are you all? We are good. Good, sir. Good. Okay. So today, how many students are joined today? I think 20 people are meeting in. Huh? So is 20 or the there any student who is regular? Everyone here is new. Okay, Pooja. Next, other. Sahil. Sahil. Okay. Next. Okay. Actually, your name is not display. Okay, no issue. Actually, today, as you know that our session is revision session. So we will discuss. We will try to discuss very brief so that we can each and every section we can complete. Because of we have only we have only two classes today and next tomorrow. Okay, so we will discuss very brief unit wise, right? And if you have any problem, you can discuss with me because of your exam has been come. Okay, so we will discuss. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, if you have any problem you can ask any question. I will discuss. I will try to discuss each and everything. Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5. Okay, but now today we will discuss only Unit 1 and Unit 2. If we have more time, so we will discuss also Unit 3. Okay, so actually I will discuss very brief because of you have already taken the classes, and I will discuss each and everything your unit. Okay, so as you all know that first unit is historical development, right? And second is user studies, third is information sources, fourth database and internet services, and fifth is role and contributions of social sciences. You should know, you should understand about that. Unit first and unit fifth is the base of history. So you should take as a history, and you should read, you should learn all of these things uh, because of history. As you know that all student has a history is a boring subject, so I think you should only read, and I will discuss only brief these sections, and which this section will be cover all aspect what is your in your syllabus, and how can you perform your examinations. Okay, and I will each and every parts of unit 1. So what is the unit 1? I will discuss scope. Is it visible, huh? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. एंड ऑल्सो यू आप लोग को इंटरेक्शन भी करना होगा मुझसे, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो हु इज द न्यू हेयर, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क डायरेक्टली, डोंट हेजिटेट. ओके, scope and discipline and its development.
Okay, next is the what is the research trend? Research trend in social science. What is the history in history, and then political science? Then economics. Okay, so first of all, we will discuss what is the history, what is the discipline of social science, and how it is developed in 18th century, 19th century. Okay, so this is the same PPT as we earlier discussed in the classes, right? So first of all, we should understand uh, why it is important, history of social science, and what is the scope, what is the importance, uh, how it is the development in 19th century and also 20th century. You should all you should know about how it is important, why it is in your in your syllabus. Okay. So first of all, we start quotation. Science is the great instrument of social science, social changes. Okay, science is the great instrument. It means science is compared to instrument, so that we can change our social system, our economy, our uh, geography. So it depends on these things of. So what is the you social science? You in this picture, you can see that here two pictures are there. Okay, one is Earth, and second one is four persons are here. It means social science is the very different of the science. Okay, science is the instrument. And next slide, I will discuss about what is the importance of social science and science, because uh, we should know basic understanding how social science works and how science works, and what is the difference between social science and science. Okay, in this picture, you you saw you see that there is a there is a earth, and we are here, and we are living in this planet. Okay, and this is the this is the part of social science. Everywhere you can see that our nature, okay, and our whatever we have surroundings us. So this is the all about the social structures and social science. And other picture is display is the four persons are joining, four persons are adding something something so that we can connect and we can develop our society. Okay, so this is the basic understanding of social science. And next slide, you can see that the social science, social and science. What is the social? Relating to human society and how it is organized. Okay, and science, what is the science? The study of the physical and natural world and phenomena, especially by using systematic observation and experiment. So you can see this. So it means the science and social science. Social, it means we are here and we are living surrounding with the people, surrounding with the nature. Okay, surrounding with the environment. Surrounding is the everything, each and everything. These are the factor of the social science. Social, a science is the things we can observe, we can experiment in the particular area, particular lab, and particular human resources, so that we can science. Science is the difference. So what is the main what is the difference? So I will I will show the how it is the difference. Okay,
science and social science. First is science. Science is a branch with that deals with physical world. Okay. And what is the social science? Social science is the study of human society and social relationship. Okay. Actually, we should understand about the science and social science. Then you can study. Then you can understand why it is important of social science in our life. So that is why it is very important. So that is why I I will try make you understand. So next is it is the field such as biology, chemistry, physics, earth science, and astronomy. It is the basic. It is major. I I type astronomy. Okay. Here it is the field of such as economics, political science, law, geography, history. Okay, it is the major difference. Third one is it always works it always use scientific method.
use scientific method as well as other methods. Students can become medical doctors, nurses, engineers, and other is biologist, chemist, and also astronomist. Okay, these are the things. What is student can become lawyer, linguistics, historian, and then writer, journalist, teacher also, accountant. Okay, so these are the, now you can understand what is the difference. What is actually, these are the very big difference. Actually, people don't understand about that. What is the difference? Is the difference is must know about science. Science is the branch of science that deals with physical world, and what is the here? Human society and social relation. And other is you can since you can study biology, chemistry, physics, and here you can political science, law, geography, history. Okay, and here we can use scientific method, and you can also study in research methodology how we can different instrument that can use in the science. And other, you can study in the social science how it is works with social science, and how can we research methodology in this use in the social science. And fourth one is what is the implementation, how the uh, uh, human resources, you can say that it works. It after the science, we can you also you know about that. You can become a medical doctor, nurse, engineer, biologist, chemist, and astronomist, and also here lawyer, linguistic, historian, writers. So these are the big difference. Okay, so as you know that here is the difference, as you understand. And now we can understand how definitions of social science. So what is the new Century Dictionary says about social science? As a science or group of science concerned with all that relates
to social condition of man or to his existence and well-being as a member of an organized community. It means the social science is the social conditions of the man. We are here in this planet. We are nurtured by the nature. We are nurtured by the law. So these are the factors of the social science and our society. So what's Macmillan Modern Dictionary says: scientific structures and development of society, sociology, also any group of study dealing with man in relation to his fellow and his environment as a geography, civics, economics, and history. Actually, here different dictionary, different thinkers, they have own definitions, but almost definitions are very close, very similar. You can see that. What is the sociology dictionary says? The term social science have been defined as a general terms for all the science which are concerned with human affairs. And next, Webster what says: social science as the branch of knowledge that deals with institutions and functions of human society and with the interpersonal relations of individual as a number of society. Okay. And last, Oxford what says: social science as a scientific study of human society and social relations are subject within their field, such as economics or politics. Right? If you have any problem, ask. Okay. I think you all understand, right? Okay. So what is the next? What is the objectives? List of disciplines interrelated to social study. Difference between disciplines. So appreciation for the relations between people and society and the environment. So these are the important objectives, and why it is very important of social studies, and what is the objectives, what is the relationships between human and our social structures. So these are the objectives. And what is the discipline, what is the scope of social science? As you know that, as uh, I will try to understand what is the things. Those disciplines are as follows: commerce, okay, education, and political science, sociology, economics, psychology, okay, anthropology, sociology, interrelations, criminology, and also IR also, social works. These are the area. These are the particular field of the social science. Okay, and what is the uh, these are the uh, I told you earlier, uh, but it is the five primary social science: anthropology, sociology, political science, geography, psychology. Okay, so these are the anthropology and political science. Okay, the study of humankind in all its aspect, culture and development. These are the anthropology. What is the study in anthropology? Culture and development. Okay, and political science. What is the political science? The study of political organization and institutions, especially governments. As in picture depict that, here constitutions, our constitution is the topmost law for our country, and we all the legislative, executive, judicial services, all the things based on the constitutions. Okay, so these are working under the constitutions. And anthropology, uh, we can study uh, different you can you as you know that we have a different tribes. Okay, and different parts of India.
So we can study in culture how it is evolved in the last century. So this these are the study related to anthropology. So this is the part of history. So I know that it is the history actually always it is the boring, but if you study like a picture form, you can study and you can think about the situations. It is not boring. It is very essential, because if you don't know about your past, okay, so how you grow in your future, because past is the very important, and we can learn from the past. So we should not think about that. History is the boring. And next, what is the geography and psychology? What is the geography? The study of all physical features of the Earth's surface, including its climate and distributions of plants, animals, and human life. So we can study, what is the study in geography? Physical features of the Earth's surface, including and also climate, and what is the distributions. If you see that in northeast, in southern part of India and western part of India, different uh, plants, animals, and different human life, and also climate is the different things in the earth. If you here in India, you can see that uh, every 3 or 4 5 months, uh, the climate the climate has changed. And here this our in India, uh, we can feel whether it is uh, whether it is a very hot season, okay, very cold season, and also you can see that here the rainy season. So here we can feel every climate. But but you see that in other part of uh, in earth, 6 months and also 1 year, also 12 months, whole year, they have they have also snow. So these are the climates factor. So we can scientist and also geologist, uh, these are the study. They can study of the earth. And also if you see that uh, yesterday in Delhi, you can see that there were totally atmosphere has been changed. So what is the behind that? And you can observe that IMD, and IMD is forecasting the climates. So IMD earlier told about that this date, this time, climate will be changed. So these are the study of the geologists, scientists. So this is the under of geography. And what is the psychology? The scientific study of human minds and mental states of human and any animal behavior. We can study of psychology, uh, scientific study of human mind, of animals, and also study of human behavior. So these are the psychology. Okay. So as you know that uh, what is the development of social science and trends and growth? Actually, I these are the important topic, and you can understand what and this is the only bullet forms, and you can study one by one, so that you can get good marks in the examination. So I have all these are the factors, uh, these are the terms. I'll also actually I teach also.
So what is the historical development? First, we can understand scientific research and its method, development of social science, discipline, undisciplined and multidisciplinary research. These are the all factors of social science and trends and growth also. How it is the evolved time to time, the Marxist method, tools and techniques of analysis in research, social science and government, how it is works, social science with the government, and the utility of social science research for society, how it is the works utility, and the modalities of financing social science research, development of social science contributing factors, what is the contributions of social science for the development, for the trend, for the growth, how it is the works and in the social science. And next one is the social science in ancient time, middle time and modern time, how it is works and how it is evolved time to time, and how it is the change. In ancient time is the different time of the social science, social scenario, you can see that. And social science in the 17th and also 18th century, 17th and 18th century is the period of modern period. So how it is it works the behind 17th and 18th century, you can study like British time, and also some kings, and you can study about that. So these are the topic you can you can you can study from the from your books also, because of it is it is not necessary for discuss here. And new ideology and their impact on the development of social science in the 19th century and the 20th century, and research in the 20th century in the nature. So next one is the social science policy and national development, how it is the works. As you know that policy, government uh, government defined, and government passed the rules of the Lok Sabha and Rajya Sabha, so that how it is works like a as you know that new education policy comes in 2020, and how it works in education system. These are the all things of the social science parts. You can study, okay, national and how it is national development, how it works the social science India past and past, present and future. Because you have seen that we the government has a what's in the present scenario, and what will we do in the future scenario. So these are the roadmap of the government. without these things we cannot imagine in our society, in our perspective of nation, and also we can connect with other nation. So these are the factors of the social science. Without it is not possible uh, to do each and everything in our in this nations, and also international. So social science development ancient time, okay, and also you can see that the Gupta period, Mughal period, British periods. These are the periods, and there in this period we can study how the social works, and how it is the structures of the social. And that time, Gupta period time, the people, how it is the works, and that kingdom, Gupta kingdom, so how it is works with the people of India, people of uh, other nations. So British period, as you know that it is the modern era of British period. And educate, and also you can study about how educations work in modern India. And other is the social science in education India, before independence, post independence, committee on social science in research. This is the very important. It means the government formed the committee for the different works
and different assigned the works of the particular committee. So how many committees has been created in the past, present, and the future? You can study in this sections. And also Indian Council of Social Science Research, ICSSR. It is a very important ICSSR. And Social Science India is retrospective and perspective. Report of the second review committee 1978. This is the very important, how it is the 1978 review committee works. The third review committee in 1986. This is also important. And Social Science Research Institutions India, pre-independence, post-independence, financing the social science research institutions. Okay, so these are the things I will already, actually I have discussed already. So this is the things we can understand about the our past and our futures, and how it is the today we are here, and how it works, and how it is doing each and everything of the under the policy of constitution. So these are the things. So is there any doubt? Or, do you have any doubt? Okay, no one responds. Why? Nikhil, Jyoti, Kunal, are you there, or you go somewhere? Yes, I'm here only. Okay. Good morning, sir. Everyone. Good morning. Good morning. You got it my point or not? Yes, sir. जैसे 17th Yes, yes. century या 18th century का क्वेश्चन आता है, तो we have to write up to like 17th century में जो भी हुआ था, तो we have to write all these things in the social science. Yes. Yes, yes, yes. You can if you have this type of questions, you Yes. अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करोगे, उसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लोगे आप उसको। Okay. और मैं तो यही आपको कहूंगा ना कि आपके जो एसओएल की जो नोट्स है, उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से उन्होंने हिस्ट्री में दे रखा है ना। तो आप उसको जो है ना पॉइंट वाइज आप, सर जैसे हाँ। क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स में तो वी हैव टू राइट कि वो कौन थे, क्या उनकी हाँ। फाउंडेशन थी, ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा ना। ये सारा कुछ लिखना। और कुछ क्या है ना कि जब एग्जाम में जब आप अपीयर होगे ना, तो कुछ चीजें ना फैक्चुअल डेटा होते हैं, उसको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, ताकि आपको ना वहां पर आप जब चीजों को जब आप शो करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ एग्जामिनर को कि आपको पता है चीजों को। अदरवाइज आप कितनी स्टोरी बनाते रहोगे, है ना। जैसे कि मैं कुछ आपको मैं फैक्चुअल डेटा आपको इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ पार्ट इसमें, जैसे कि आपका मान लीजिए कि ICSSR है ना, ये कब आया था ICSSR, वो पता है? फिर NASDAQ कब आया था? ये सब कुछ फैक्चुअल डेटा ना। ICCR तो 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। वेरी गुड। और NASDAQ कब हुआ था? 1969। ये और आप ये भी पता करना होगा कि आपको ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मेन सेंटर कहाँ है इसका। ICSR का तो और न्यू दिल्ली में है। हाँ, न्यू दिल्ली में है ये। तो ये चीजें थोड़े से फैक्चुअल आप उसमें अपने एग्जाम के उसमें ऐड करोगे ना ये सब चीजें, और इसके फुल फॉर्म, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे इसमें। इस तरीके से कुछ चीजें आपको फॉलो करने होंगे। जैसे सैंडॉक है, सैंडॉक ये आया था 1971 में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
आपको देख रहे हो ICSR 1969 में आया, फिर 1970 में 90, और ये आपको इस सीक्वेंस वाइज आप याद भी कर सकते हो इसको। हाँ जी सर। फिर एक आया था आपका तो सैंडोक भी 1970 में ही तो था शायद। सेंडॉक, आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है 1971 में ये आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप कुछ चीजें ना फैक्चुअल डेटा और कुछ चीजें वो याद कर लेना, और इसको फिर बहुत सारे पॉइंट्स में ना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है, और इसमें हिस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। मेन आपका जो मैंने यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। यूनिट 5 आपका जो है और यूनिट फर्स्ट, ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो थोड़ा सा इसको कुछ चीजें ना फैक्चुअल चीजें याद करनी होगी। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स। अब इसमें इकोनॉमिक्स कैसे वर्क्स करता है, ये कौन कौन से थिंकर हैं इसमें, ये कुछ चीजें ना आपको ना इसमें क्या करना होगा। देखो मैंने इसमें बुलेट फॉर्म में लिखा है, तो आपको इसके बारे में गूगल करके कुछ चीजें, आपको इसके बारे में मोटा मोटा चीजें आपको नोट डाउन करके वो जानना पड़ेगा चीजें, है ना। जैसे कि जॉन लॉकी हो गया, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, एल्फ्रेड मार्शल, जॉन माइनर्ड केन्स, जॉर्ज स्टीगलर, पॉल एंथोनी सैमुअल्सन, फ्रैंको मोल्डिगनी, कौटिल्य इन इंडिया, वीके आरबी राव, दीज आर द थिंकर ऑफ, इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल, चेन्नामनेई हनुमंता राव, मनमोहन सिंह, अमृत कुमार सिंह. So these are the thinkers, and economics you can say that. And sociology में कौन कौन से हैं? जॉर्ज सैमुअल, हर्बर्ट स्पेंसर, पित्रम्मा सोरोकिन, एमिली डर्कन्स, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, थॉस्टिन बुंडे बैगलिन, विलियम एजेक थॉमस, Balfredo Pareto, Robert E. Park, Dr. Yogesh Atel, Dr. Gaurang Prasad Chattopadhyay, Dr. Brijraj Chauhan. So, August बिल पैरेटो, ये आपको नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 80-20 का रूल आता है नेट में, ये भी आप इसको नेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो है सोशल साइंस जो कंट्रीब्यूटर है, ये जो है आगे इसमें आपको ये 5th का है। ऐसे इसमें कुछ चीजें मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, नेक्स्ट जब 5th वाले उसमें आएंगे तो हम रिवीजन में कर लेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस में है आपका प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैक्वेली है, थॉमस हॉब्स, जॉन लोकी, जीन जैकस रशिव, फिर बैरन दो मोंटेस्की, फिर हेगेल है, बी आर अम्बेडकर, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन रॉय, चितरंजन दास। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड आपको जो है ना इसके अलावा ना ये जो भी मैंने डिस्कस किया आपके बुक में नहीं है बहुत सारी चीजें, तो इसको आप गूगल कर लोगे और इसको कुछ मोटा मोटा पॉइंट आप नोट डाउन कर लोगे, तो आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। और इससे बाहर से नहीं आना चाहिए, मैं इतना कंफर्म हूँ। ये सारा चीजें आपको कवर करता है, क्योंकि मैंने मेन चीजें इसमें से ले आया है इसमें, तो कोई इसमें इशू नहीं है। ये आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना आप, अगर जो आपके पास ना हो। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास में मैंने ये डिस्कस किया है, तो ये सारे आपके पास स्क्रीनशॉट होंगे आपको। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है ना रिसर्च इसके स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन एंड डेवलपमेंट रहा ये। अब इस तरीके से रिसर्च ट्रेंड में किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका रिसर्च ट्रेंड क्या है, ये हमें समझना होगा पहले। तो ये हम आते हैं पहले इस पे। नेक्स्ट वन इज द रिसर्च ट्रेंड। क्या क्या रिसर्च ट्रेंड्स हैं किसमें? सोशल साइंस में। सोशल साइंस में कौन कौन से? इट वाज द हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर नेक्स्ट इज पॉलिटिकल में क्या, ये दीज आर द मेजर थिंग्स। पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स,
and also sociology. So first of we understand about that how it works, and what is the research trend. It is the past, present and future. So first we understand that what is the relationship in the social trend in like sociology, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स. तो आपको रिलेशन, इसके रिलेशन करने पर आपको रिलेशनशिप इसको क्रिएट करने होंगे कि आपको इसके अकॉर्डिंग क्यों, मतलब सोशल हमारे पर्सपेक्टिव में ज्योग्राफी सोशल साइंस में क्यों इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो ये आपको ना एक ट्रेंड लेके चलना पड़ेगा, उस तरीके से आपको इसको कवर करना होगा. क्या, जैसे रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस and geography. So social science, social trends and geography. इस तरीके से आपको फिर इसी में ज्योग्राफी के बाद इसमें आ जाएगा अपना इकोनॉमिक्स. ये थोड़ा सा आपको समझना होगा. पॉलिटिकल, ये आपके ऐसे नोट्स में बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये आप समझ सकते हैं इसको. आप इसको 1 by 1 इसको ये आप कंप्लीट कर लेना इसको. ठीक है, और हम इस पे बात करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा जो सेक्शन है, आज हम 2 यूनिट ही कोशिश करेंगे, 2 यूनिट हमारा कंप्लीट हो, क्योंकि ये इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज्यादा. आपके इसमें रिसर्च ट्रेंड में ये आपके जो है ना, आपके जो एसओएल के जो नोट्स है, ये बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. ये आप एक बार देख लेना इसको एक एक करके, कि आपके इसमें हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटिकल साइंस में क्या है. इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट आप थिंकर देख लेना, कंट्रीब्यूटर देख लेना. फिर आपको इसमें इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हैं और कैसे हमारा जो है ये हमारे सोशल सिनेरियो को कैसे चेंज करता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड ऑल्सो यू कैन स्टडी बिकॉज ऑफ this is the history part, so no need to discuss more about that. So next हम आते हैं इस हमारा जो next unit है. If you have any doubt in this section unit 1, you can ask directly. Okay, so next हम start करते हैं unit 2. हमारा unit 2 में कुछ चीजें जो है इसमें डिस्कस करने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, और हिस्ट्री का पार्ट है और करंट सिनेरियो में भी ये काम करता है ये. तो हमारा जो है ना यूजर स्टडी, क्या क्या है यूजर स्टडी में, यूजर स्टडीज और इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर. एक्चुअली मैं ये एक एक चीज इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोगों ने क्लास अभी तक एक बार भी नहीं लिया है, वो थोड़ा सा उनको एक आइडिया लग जाए. अदरवाइज इसको मैं शॉर्ट में भी बहुत सारी चीजें कर सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ये इतना इसमें करने की कोई जरूरत नहीं थी. बाकी ऑलरेडी जिन्होंने क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको ये सब आइडिया है कि कैसे ये मैंने इसको कंप्लीट किया था. तो इसमें क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन नीड्स, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द नीड्स ऑफ यूजर्स. पहले हमें यूजर्स के नीड्स को समझना होगा, फिर उसके बिहेवियर को समझना होगा कि कैसे बिहेवियर है. क्या है इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी भी कोर्स या किसी भी आपको ना सबसे पहले ना सिलेबस, you should know understand about syllabus, because syllabus is the navigate. Otherwise you can never understand about the how you can
study and what is the main things in your unit. So पहले आपको कनेक्ट करना सीखना होगा कि क्या होगा, तभी आप अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज एग्जाम के टाइम आपके अननेसेसरी चीजें पढ़ के कुछ फायदा नहीं। आप ये सोचेंगे कि ये भी पढ़ लें, वो भी कवर कर लें, तो वो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है वो। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा उस तरीके से आपको कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये आपको जो है ना सिलेबस कनेक्ट करके आप चीज़ों को समझ पाओ, और बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, और इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पहले हमारा इसमें मेन है यूजर स्टडीज, जो हमारे जैसे कि लाइब्रेरी में जो यूजर्स होते हैं, एंड तो उस पे हम कैसे हम इस पे क्या-क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो हम यूजर स्टडीज में पढ़ते हैं। फिर वो इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, जो यूजर जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है, उनका जैसे कि किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी सीकिंग बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से यूजर, जैसे कि आप सपोज मैंने आपको बोला कि ये चीजें आप कर लेना, गूगल कर लेना, तो ये क्या है आपकी, दीज आर ऑल द सीकिंग बिहेवियर। You have only one access like Google, and other you can visit the particular website so that you can get access particular information. Okay, so these are the things of the information seeking behavior. So first you should understand, because of these are the actually this works on the यूजर्स कहाँ बैठते हैं, वो लाइब्रेरी में होते हैं। फिर अदर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं लाइब्रेरी के अलावा। आजकल लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म को हम कुछ उसके एक्सपोजर दे रहे हैं, सो दैट वी कैन कनेक्ट मोर यूजर्स with across the globe. Like you know about the NDLI. Okay, NDLI, National Digital Library. So these are the perform of the user studies and also seeking behavior. So यूजर स्टडीज में इसके क्या क्या व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये सब आपके सब सिलेबस में है, बट फिर भी मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, चीजें कनेक्ट कर पाए आप चीजों को। ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स, ओके, and why if you have a user, suppose if you are in the library and you are the main authority of like as a librarian, so how you know the user here users which kinds of users comes every day here, and how can you perform so that every users can get access the particular informations the particular users। तभी तो आप चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, चाहे आप सपोज आप लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। और कैसे, जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट डेवलप किया, आज के टाइम में आपको पता ही है ब्लॉगिंग है ना, तो आपने कुछ इंफॉर्मेशंस की वेबसाइट किया, तो आपको पता लगेगा ना कि ये हमारे वेबसाइट्स पे आपने कितने यूजर्स आ रहे हैं। फिर आपने एसईओ भी पढ़ा होगा, सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ये जो सारा जो होता है ये एक गूगल के एल्गोरिदम पे काम करता है। आपको जैसे इंफॉर्मेशन किस तरह के यूजर्स आपके रेगुलर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ये आपको जो है ना एसईओ बताता है। इस तरीके से जो है आज जैसे पुराने टाइम में लाइव जैसे कि यूजर स्टडी में ये यूजर स्टडीज है, बट ये जो अच्छे जो प्रेस्टिजियस जो लाइब्रेरी है वहाँ यूज हो रहे हैं इसको। लेकिन आप जो छोटे मोटे लाइब्रेरी है ये इतना यूज नहीं करते हैं लोग, लेकिन जबकि करना चाहिए इनको। तो इस तरीके से जो वेबसाइट में आप जब वेबसाइट डेवलप करेंगे इन फ्यूचर, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे यूजर्स कौन है, हम कौन से किस ऑडियंस को टारगेट करना है हमें। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना होगा, आपको प्लानिंग बनाना होगा। प्लानिंग ऑफ यूजर सर्वे ऐसा ये नहीं है कि आप सर्वे करोगे तो फिजिकल मोड में। सर्वे भी बहुत तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा कि बहुत लोग आजकल गूगल का भी यूज करते हैं, गूगल फॉर्म का, जिसमें आपने एक आपने क्वेश्चनायर तैयार किया, फिर उसको आपने व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू और डिफरेंट यू कैन
you can send to particular user, so that you can understand what is the user wants. Okay, so and these are the planning. And now method, what is the method of the user, किस तरीके से आप जो है कौन से सर्विसेज जो है आप यूजर्स को प्रोवाइड कराएंगे, इसके मेथड्स क्या है, ये आपको यूनिट 2 में है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, वेरी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम। सो ऑलरेडी वी एक्चुअली वी विल डिस्कस। So what is the information? These are the division classes. Okay, so information needs of the user and information seeking behavior. And also in this slide we will discuss user studies and planning and survey. So first of all, first you understand एक 1 minute. हेलो, अभी मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं थोड़ी ऑनलाइन क्लास ले रहा, ठीक है? ठीक। In first we understand information seeking behavior, information needs of user. Okay, so in this unit we understand what is the library user and why information seeker is very important, why it is important, and what is the behind the all methods works, and what is the communication process to the users, so that we can understand about the information need and various type of informations, and which kind of informations user can get easily. Some information we can particular particular subscribe based, it means we can paid access. So these are the things. So first information seeking behavior, first user information need and information gathering and information seeking. We understand use and user, जब तक यूज हम यूज करने वाले नहीं रहेंगे, जब तक हमारा जो अगर ऑडियंस नहीं रहेगा तब तक यूजर कैसे होगा? तो फिर हमारे लिए यूज, पहले हमें उस तरीके के इंफॉर्मेशंस को जो यूजेबल हो, जो कि यूजर्स को चाहिए, उस तरीके से हम सर्व करते हैं एज ए लाइब्रेरी, एज ए लाइब्रेरियन, या एज ए आप वेबसाइट्स पे आप ब्लॉग बना रहे हैं, या कुछ भी चीजों को आप यूजर्स को रिप्रेजेंट उसको देना चाहते हैं, तो उस तरीके से यूज और यूजर के हिसाब से चीजें चलता है। फिर क्या है इंफॉर्मेशन नीड, क्यों पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नीड, क्यों चाहिए वो इंफॉर्मेशन? आप देखोगे डेली बेसिस में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो आप डेली वाइज कुछ ना कुछ सर्च करते ही होगे आप अपने मोबाइल पे, चाहे वो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या अदर गूगल प्लेटफॉर्म हो, and different platform you can see that information need every day you search. And before 10 to 20 years ago, it means 20 decades ago, we had not like these kinds of information, and today we are in the present scenario in 21st century. We are here and we can search in one room whatever you information wants, but 20 decades ago you cannot search because we had not platform that time. So now we are very lucky, and we can learn each and everything like if you have no, suppose if you have not idea how internet works, how computer, and how can you book your ticket
for the like a plate, airplane ticket, train ticket. So you can search on YouTube, and you can learn from the tutorials, and you can get easily access of these things, and you don't want to any person to learn and to teach to these all things. So what is the things? It is the information. So these are the very important aspect of our seeking behavior. So information gathering, information seeking. So how it works? Information and information seeking and information search. Okay, तो इंफॉर्मेशन जो ये सर्कल है, ये एक तरीके का आपका एक कंपोनेंट है। ये पूरे इंफॉर्मेशन नीड को डिफाइन करता है कि ये कैसे ये जो है इस तरीके का काम करता है। जैसे अगर आप एग्जाम में भी आप जब अपियर हो गए ना, तो कोशिश ये करना कि आप लोग ना कुछ चीजें जो है पिक्चर फॉर्म में बनाने की कोशिश करना। अगर आप पिक्चर फॉर्म में चीजों को बनाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये जो हमारा जो स्टूडेंट है, इसको नॉलेज है इन चीजों का। अदरवाइज ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को। तो ये सारे पिक्चर जो मैंने कुछ है, तो ये पिक्चर को आप लोग नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में भी ये काम आए। और बहुत ईजी है, ये एक बार में लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इन फाइल क्या करते हैं जो है इंफॉर्मेशन जो है हमारा जो एक बिहेव काम करता है, किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन, फिर हमें इंफॉर्मेशन सीकिंग, फिर हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन सर्च। फिर ये ठीक इधर है इंफॉर्मेशन बिहेवियर, फिर इंफॉर्मेशन नीड, इंफॉर्मेशन सीकिंग और इंफॉर्मेशन सर्च। ये इस तरीके का पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है इस पे। नाउ काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नीड्स। ओके, तो Melvin J. Worgett users recognized 3 types of information need in 1961. Actually, this is the very important, and also you can see in your previous question of UGC net these the 3 important in I have seen. You can search about that. These questions in previous year questions come. Okay, so first is exhaustive information need, and second is everyday information need, and third is catching of information need. Okay, so I will not discuss and I will not deep dive of in this particular information. Okay, you can search. Okay, now we understand model and theory of information seeking behavior. Okay, so this next, after the next slide, you can see that these are the important for your examination, and also UGC net also examination. So models and theory of information seeking behavior. Gibbs principle list efforts. What is the date when this principles comes in 1949 by the Harvard linguistic George Kingsley Gibbs in human behavior and principle of list efforts. So ये बहुत important है ये. Okay, so next these are the important of information. These are the model, you can say that. Taylor level of information need approach when he came 1968, and uses and gratifications theory 1974 by the LU Cards, J. Blummer, and Michael Gorwich. Okay, and next is Wilson Information Behavior Models 1981. Wilson Information Behavior Model. This is the same model, and it is actually this model is revised again 1996. And next one is Darwin sense making approach. These are the model when first comes 1983, and revised edition is the 1992. And Kirkles model 1983 came, and by the James Kirkles 1983. Next one is Alice behavior model of information seeking. When he came 1989. Okay, next one is Kuhlthau information search process, ISP. This slide you can see that
three Wilson and Wilson again 1996 and Kuhlthau, and also Darwin census making, and also Kirkle's model. These are the important for your examination and also UGC net. You can search last in previous question in UGC net. You can see directly these questions ask about who is the founder of these models, okay, and what is the established date. So you can learn. And next is episodic model. It is very important for your examination. Okay, 1 minute. So next is non-linear model of information seeking behavior in 2003, Alan Foster, and ecological theory of human information behavior, so by the Williamson. Everyday life information seeking, Erasmus Sorelimin, information encountering Santa Arilis, and anomalous state of knowledge, ask Nicholas J. Belkin. Anomalous state of knowledge, this is the very important, and you can, this is the very important, okay. And also episodic model is the very important for your UGC exam, UGC net exam. And also this is the very important, and linear model, and model information behavior and sense making approach, very important. ये जितने मैंने ये हाईलाइट किए हैं, ये एग्जाम में यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड आपके एसओएल के एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये मॉडल आ सकते हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और इसके जो सेंस, जैसे कि ये जो इसमें जो भी चीजें हैं, इसके बारे में ना, इसके थोड़े से आप सर्च करोगे तो इसको आपको डिटेल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जो है एक एक करके इसमें सर्च करके आप चीजों को समझ सकते हो। जैसे कि सेंस मेकिंग अप्रोच है, तो इसमें जो है ना, इसमें 6 टाइप के जो है ना अप्रोच है इन्होंने किया है। तो उसमें क्या होता है, नेट के एग्जाम में वो पूछा जाता है कि अरेंज करने के लिए कि कौन सा अप्रोच कब था, उसके बाद कब है, नेक्स्ट कब है, नेक्स्ट क्या है। तो अप्रोच को ना आप एज इट इज लर्न कर लो, ठीक है। फिर SMCR मॉडल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। you can ask every year in UGC net exam. Actually, this is the very important. And also ask anomalous state of knowledge, very important. Now episodic model. So these are the very important. Okay, next is information behavior model. When this model came, June 1999. For what? Information, Wilson model of information behavior. First you can understand इंफॉर्मेशन यूजर। जब इंफॉर्मेशन यूजर आता है तो पहले क्या, उनकी जो यूजर्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन, वी आर द ह्यूमन, इट मींस वी आर द इंफॉर्मेशन यूजर। एंड देन इंफॉर्मेशन यूजर को क्या चाहिए, नीड, उसको क्या चाहिए, नीड में अब इन्फो सेटिस्फेक्शन और नॉट, ये लास्ट के पहले हम इस सीक्वेंस से चलेंगे। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, तो क्या करेगा वो, उसको जब नीड आएगा, जैसे सपोज आपको कोई चाहिए कि हाँ ये मुझे चीजें करनी है गूगल से, तो आपने क्या है, ये एक प्रोसेस है। ऐसे आपको अगर कोई चीजें आपको सपोज, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी या फ्रॉम द गूगल। यू शुड अंडरस्टैंड library is different thing and Google is different thing. Don't you cannot relate that you can get all information from the Google. It is not possible. So library आजकल आज जो है लाइब्रेरियन का ऐसा नहीं है, आज लोग इसको बोलते हैं कि नहीं लाइब्रेरियन क्या, हम तो हर जगह से इंफॉर्मेशन, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक। अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे, करोड़ों में चीजें आएंगे, अननेसेसरी चीजें आएंगे, जिसका कोई मतलब आप सर्च करते करते थक जाओगे, इतनी सारी चीजें हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और ये भी आपको पता नहीं लग पाएगा ये इंफॉर्मेशन ये सही है या गलत, क्योंकि इतने सारे ब्लॉगर हैं, इतने सारे वेबसाइट्स हैं,
वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन, एक वर्ड है इंफॉर्मेशन पॉल्यूट, इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। तो ये एक तरीके का, ये आपको, आप इन फ्यूचर आप रिसर्च करोगे, पीएचडी में जाओगे, तो ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हम ये जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थ्रू वेबसाइट या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग, दिस इज द authenticate your information, this information can use in your research. First you should understand about that, otherwise your research will not good, and you can you can your you cannot good perform your research, and you cannot find good result, whatever you want in your information. Okay, so first you understand information seeking behavior क्या होगा, डिमांड्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिमांड्स इन अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। टू टाइप से करेंगे, वो क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम से और इंफॉर्मेशन सोर्स से। तो ये जो एक इसका जो है ये इस तरीके से करेंगे, ये तो ये एक तरीके का वो है, एक मॉडल है ये, कि किस तरीके से ये काम करता है, तो आपको ये समझना होगा। फिर उसके बाद पहली बार में वो सक्सेस, या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर वो सक्सेस होता है तो इंफॉर्मेशन वो यूज करेगा, वो इंफॉर्मेशन जब यूज करेगा तो सेटिस्फेक्शन और नॉन सेटिस्फेक्शन दो तरीके से होगा। अगर उसको यूज करता है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी कर सकता है, किसको ट्रांसफर किसको कर सकता है, फॉर द अदर पीपल को, लाइक ये अदर पीपल। फिर ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी होता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक मॉडल है, और इस तरीके से पूरा ये सर्कल चलता है। और आपको ना एग्जाम में ना ये, अगर विल्सन मॉडल, अगर जैसे मान लो सपोज एग्जाम में आया, अगर ये सेम विल्सन मॉडल आपने आपने पूरी तरह से आपने इसको ड्रॉ कर दिया, तो आपके पूरे मार्क्स पक्के हैं एकदम, ये 100% जानिए इस चीज को। ठीक है, तो ये आप इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट हम आते हैं द मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस, यानी कुलथाओ मॉडल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड यूजीसी नेट ऑल्सो। सो कैसे कुलथाओ मॉडल काम करता है, फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज सिलेक्शन, थर्ड इज एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज फॉर्मुलेशन, and fifth is collection and presentation. So this is the very important, how the users first क्या करता है, वो फीलिंग करता है। फीलिंग कैसे, फिर वो पहले वो आता है अनसर्टेनिटी पे, फिर ऑप्टिमिज्म पे, फिर कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन एंड डाउट, फिर उसको क्लैरिटी करता है, फिर सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस उसको लेता है, फिर सेटिस्फेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट, दोनों तरीके से। अब क्या होता है, जब उसके कॉग्निटिव, यानी जब ये थॉट प्रोसेस, इट मींस कॉग्निटिव वर्क्स, तो के तो या तो वो वेग होगा, वेग अगर होगा तो फोकस्ड एंड इंक्रीज्ड ऑफ इंटरेस्ट करके होगा। फिर उसका एक्शन से क्या आएगा, फिजिकल में सीकिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोरिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड सीकिंग पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। तो पर्टिकुलर ये इंफॉर्मेशन जो इसको चाहिए, उस तरीके से लास्ट में ये इसका मतलब किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसके फीलिंग्स पहले आएंगे, यानी ये फीलिंग्स, फिर थॉट्स, फिर उसके एक्शंस पे काम करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, फर्स्ट वो जो यूजर्स होता है, पहले वो किसी भी इंफॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा, देन सिलेक्शन, थर्ड इज एक्सप्लोरेशन, उसको पूरी तरह से सर्च करेगा, देन उसकी फॉर्मुलेट करेगा चीजों को, उसको क्लैरिटी में लाएगा कि कौन सी इसमें इंफॉर्मेशन यूजेबल है, कौन सा नहीं है, अननेसेसरी चीज हम फाइंड आउट तो नहीं कर रहे हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट इन फॉर्मुलेशन। फिर नेक्स्ट, जब वो गुड इंफॉर्मेशन अगर उसको मिलेगा, उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगे, नेक्स्ट वन इज जो the users will collect the particular information, and then that information, if after the collection, every information doesn't mean every information is usable for the users, it is not possible. So क्या करेगा वो, या तो वो after the selection, after the collection of the things, he will be satisfaction or disappointment और अनसेटिस्फेक्शन। अगर जो सेटिस्फेक्शन होगा उसके रेलिवेंट रिसर्च के रिलेटेड होंगे तो उसको अपने स्टडी में उसको यूज करेगा। दीज आर द कुलथाओ मॉडल। व्हेन द कुलथाओ मॉडल कम 2004। okay, and next one is the very important SMCR model, very important, very important for your exam and for also UGC net exam.
So Berlow models, SMCR model was created by American communication theorist by David Berlow in 1960, who expanded the Shannon-Weaver model of communication into clear and distinct part of Berlow SMCR model. It is one way or linear communications framework based on the Shannon-Weaver communication model. ये कैसे काम करता है, ये आपके ना एग्जाम में ना ये भी पूछते हैं कि इसके फुल फॉर्म आप बता दो या इसको अरेंज कर दो। जैसे उन्होंने पूछ दिया कि SMCR, तो इसमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद आएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो फर्स्ट ये समझना पड़ेगा कि पहले सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको बहुत इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं। पहले तो यूजर सेंडर, पहले तो सेंडर ही होगा, फिर क्या सेंडर करेगा, मैसेज को सेंड करेगा। किससे? एक पर्टिकुलर चैनल होगा, पर्टिकुलर एक उसका एक कम्युनिकेशन, एक मीडियम होगा जिसके कारण उस चैनल से परफॉर्म करेगा किस, कहाँ तक, वो रिसीवर तक। तो ये एक तरीके का ना ये मॉडल जो है, ये बर्लो का मॉडल है। ये कब आया था? 1960 में डेविड बर्लो ने बनाया था। तो अब सेंटर में देखो क्या क्या आता है। सेंटर में आएगा आपका कम्युनिकेशन मॉडल, कम्युनिकेशन स्किल। ओके, फिर उसके बाद एटीट्यूड, उसके किस तरीके का यूजर का एटीट्यूड भी होना चाहिए ना। जैसे कि आपको अब जैसे एटीट्यूड, जैसे सपोज आप मान लो आप अभी सारे अभी हम कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे, और आपको सपोज मैंने आपको कोई व्हाट्सएप में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैंने कुछ भेजा कि हाँ ये दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन यूज इन योर एग्जामिनेशन एंड यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर योर अदर स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा ये, कि आप सोचोगे नहीं नहीं मैं तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं फिर इंफॉर्मेशन करूंगा सबको पता लग जाएगा, मैं इसको एग्जाम में यूज करूंगा। तो ये क्या है, एटीट्यूड है सेंडर का। ठीक है, तो अब जो टॉपर होंगे वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे, अदरवाइज उनके लिए नुकसान है। या तो दो ही तरीके हैं आपको टॉप में एग्जाम करने का, या तो खूब पढ़ो और ऐसे इंफॉर्मेशन को छुपा के पढ़ो ताकि अगले तक शेयर ना जाए। दूसरा, या तो पढ़ने मत दो स्टूडेंट को। ठीक है, तो यानी अपने फ्रेंड को पढ़ने ना दो, इस तरीके का है। तो वो जो एटीट्यूड है, फिर उसके बाद क्या, नेक्स्ट वन इज द नॉलेज। आपको उस पर्टिकुलर चीज में नॉलेज कितनी है ताकि आप उसको रिफाइन जो है ना, रिफाइन करके आप मैसेज को आगे पर्टिकुलर फॉरवर्ड कर पाए। फिर सोशल सिस्टम क्या है, आपके जो सराउंडिंग्स है उसमें क्या, किस तरह के लोग हैं, किसको आप भेजना चाहते हैं। आप ऐसा तो नहीं है अननेसेसरी किसी को जिसका कोई मतलब ही नहीं है आप उसको भेज रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो आपको नुकसान कर दे इन फ्यूचर। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीजें कि ओटीपी शेयर ना करें, कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन आए क्लिक ना करें। ये क्या है, ये सारे सोशल सिस्टम है ये। अगर आप डरते हो, जैसे कि आपने बैंक में क्यूआर कोड स्कैन किया, आजकल आप देख ही रहे हो, क्यूआर स्कैन किया और आपका सारा बैंक पूरा पूरा खाली हो गया बैंक। तो ये क्या, आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये, अब सपोज आप बैंक के भी कई कॉल आते हैं तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कि हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं जाती है, ये फ्रॉडुलेंट होते हैं। तो इस तरीके का जो है ना आपको समझना पड़ेगा। आप कुछ चीजें क्या होता है कि आपको पता रहता है कि नहीं नहीं ये तो लिंक हमारे लिए, ये तो बिल्कुल रिलायबल है, इस पे हम लिंक करके जाके आगे हम कर सकते हैं चीजों को। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके चीजों को आप सेंड कर देते हैं मैसेज को। तो कुछ रिलायबल सोर्स होते हैं, हर जगह आप सेंड नहीं करते हो। तो ये क्या है, पूरा ये सोशल सिस्टम है। फिर हमारा जो है मैसेज जो है हमारा कैसे काम करता है, अब इसमें कंटेंट क्या है मैसेज में, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स क्या है उसके, है ना। फिर किस तरीके से उसका हमने ट्रीटमेंट किया है। जैसे कि अब मैसेज है, अब जैसे आपने कुछ चीजें मैसेज आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है, तो उसका क्या करते हैं, कुछ चीजें ना उसके ट्रीटमेंट कर देते हैं आप। उसको क्या करते हैं, कुछ एडिट करते हैं, कुछ कॉपी करते हैं, कुछ पेस्ट करते हैं, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग बना के उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट। स्ट्रक्चर, व्हाट, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो आपने स्ट्रक्चर किया है, किस तरीके से उसको वन बाय वन जो है आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, सो दैट इंफॉर्मेशन आपको जो है ना, जो आप जिसको उसको फॉरवर्ड जो करेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टा पे, फेसबुक पे डिफरेंट डिफरेंट मीम्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोक्स बनते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे ऐसे जोक होते हैं समझ में ही नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमको उस जोक के बारे में ना उसके
पास्ट का पता है, अगर अगर ना उसका फ्यूचर का पता है, यानी हमें जो मिला है ना, हम उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तभी हमें, अब कोई भी जोक समझने के लिए आप देखना ध्यान से कि उसको कनेक्ट करना पड़ता है, तब हम उस जोक को समझ पाते हैं। जैसे आप लोग आपस में फ्रेंड सर्किल में बात करते हो तो कुछ ऐसे शॉर्ट में बोल दिया, अब शॉर्ट में बोल दिया, सपोज कोई नया आ गया आपके फ्रेंड सर्किल में, तो उसको समझ में नहीं आएगा उसको। तो उसको कैसे समझ में आएगा? जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं कराओगे तब तक। तो ये क्या है? ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है? तो अब जैसे मान लो आपके फ्रेंड को नहीं समझ में आया तो आप हँसने लगोगे, अरे देखो इसको समझ में तो नहीं आ रहा कुछ। तो ये इस तरीके का होता है, तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता है। फिर कोड होता है, आप कहीं उसको कोड में किस तरीके से इंस्क्रिप्ट कर रहे हो डेटा को। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन डेटा आते हैं, आप बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन नहीं आते हैं, बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट फाइल में आते हैं, डिफरेंट उसके लोकेशंस होते हैं। तो इस तरीके से कोड उसमें करे करते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ चैनल। व्हाट इज़ द चैनल? Channel means what is the medium of communications, how you perform the communication and how you send the for the receiver, like a hearing, मतलब हम किसी को कुछ बोले और वो हियरिंग के थ्रू उसने सुना। फिर सीइंग, या आंखों से ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर रहा है, अच्छा ये इसकी सी प्लानिंग है, तो ये क्या है? सीइंग है। फिर टचिंग, आप टच के थ्रू जो है समझ सकते हो। जैसे किसी को जो है किसी को कुछ कहना है तो कुछ इशारों में या किसी को ऐसे टच करके हल्का सा मतलब वो करके समझा दिया, अरे मत बोलो अभी, ऐसा अभी डोंट शेयर टू एनीवन। तो इस तरीके से वो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये टचिंग के कम्युनिकेशंस है ना? ये चैनल है ये सारा कुछ। ऐसा नहीं है चैनल के थ्रू आप केवल व्हाट्सएप भेज रहे हो, केवल ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, नहीं। दीज़ आर द ऑल द परफॉर्म लाइक अ चैनल, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ओके। ये मैं इसलिए इसको इतना डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बर्लो का जो एसएमसीआर मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि जो आज के आज के उसके सिनेरियो में, सो दैट आपको समझ में आए चीज़ों को कि ये आखिर है क्या मॉडल। फिर क्या है इसका स्मेलिंग हो गया। आप बहुत सारी चीज़ों को स्मेल करके चीज़ों को समझ सकते हो। उसको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप अपने वर्ड में ही बोलो या मुँह से ही बोलो तभी आपको समझ में आएगा, नहीं। ये सारे जो है चैनल है, टेस्ट करके बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करके अपने बट से अपने चीज़ों को हम पता कर सकते हैं। फिर रिसीवर, द रिसीवर इज द पर्सन हु हैज टू इंटरप्रेट द सेंडर मैसेज एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली इन अ प्रोसेस कॉल्ड डिकोडिंग, ओके। अगर कोई मैसेज आया तो जैसे कुछ मैसेज डायरेक्टली आया तो आपको समझ में नहीं आया तो उसको क्या करते हैं, उसको लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे आपको अगर जैसे मान लीजिए कुछ अब बहुत सारे देखिए इंफॉर्मेशन, टीचर का क्या यूज है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज एक बुक अलग चीज हो गया और टीचर अलग चीज हो गया, अब लोग समझेंगे कि नहीं हमारे पास बुक है तो टीचर की जरूरत नहीं है, नहीं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑल एज वेल एज योर टीचर। टीचर क्या करता है, उसी इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है, अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता है। अगर आपको डिकोड ना किया जाए, चैनल को उस तरीके से समझाया ना जाए, तो आप बुकिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाओगे। और और कोई भी नॉलेज केवल आपके केवल बुक तक ही रह जाए या आपकी केवल एग्जामिनेशन तक ही रह जाए, ये सही नहीं है। उस एजुकेशन का, उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। क्या करना है आपको, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। अब जैसे बर्लो मॉडल है, अगर इसमें जो इंटेलिजेंट होंगे वो अपने लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके की एजुकेशन करनी चाहिए। क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, चीजों को समझने के लिए डिकोड करते हैं। टीचर का भी काम है डिकोड करना। जो बुकिश लैंग्वेज है उसको डिकोड कर दिया। किस तरीके से, कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उसे इंग्लिश पता है, उसे हिंदी पता है, उसे कन्नड़ा पता है, मराठी पता है, तमिल, तेलुगु। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट है, डिफरेंट डिफरेंट अगर कल्चर है, अगर वहां पर टीचर है, उसको अगर उस तरीके से उस लैंग्वेज में उसको नहीं समझाएगा, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है आपको केवल लैंग्वेज ही आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आपको समझाने का तरीका ही पता होना चाहिए कि किस तरीके से समझाया जाए। जैसे कि मैं अपने अभी आपको जो भी मॉडल समझा रहा हूँ, ये मॉडल आप देखोगे ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेली बेसिस से जो आपके जो चल रहे हैं, जो आपके आप जो डे बाय डे आप देख रहे हैं चीजों को, आप डेली कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, तो क्या है, ये भी एक स्किल आता है, कम्युनिकेशन स्किल। अदरवाइज अगर मैं सपोज अगर टीचिंग कर रहा हूँ और मैं अगर केवल मैं रीडिंग करता रहूं बैठ के यहाँ पर, तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं।
तो दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, कम्युनिकेशन स्किल बहुत सारी चीजें हैं। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरा आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से समझाना है हमें, फिर तीसरा आपको कि आपके जो स्टूडेंट है उनको किस तरीके से समझ में आता है ये पता होना चाहिए। फिर चौथा क्या है, जो भी बुक्स में है जो भी नहीं है तो उसको आपको अपनी लैंग्वेज में, ना कि बुकिश लैंग्वेज में। अगर बुकिश लैंग्वेज में समझाना तो टीचर का कोई मतलब ही नहीं है। टीचर क्या करेगा, उस चीज को डिकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में, और अपनी लैंग्वेज में ऐसे समझाएगा ताकि वो एक बार पढ़ने के बाद उसको समझ में आ जाए, और समझने के बाद वो स्टूडेंट उस बुक्स को पढ़ेगा तो बहुत इजीली तरीके से समझ पाएगा, और जो रटने वाली जो चीजें होती हैं रटेगा, जो पढ़ने वाली चीजें वो पढ़ चीजें वो समझेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल। एटीट्यूड, व्हाट इज द एटीट्यूड? अगर मेरे पास अगर मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है, अगर मैं बोलूं नहीं नहीं मैं ये शॉर्ट में बताने लगूं, या गुस्से में आ जाऊं, या मैं आपसे कम्युनिकेट ना करूं, वन वे कम्युनिकेशन अगर करूं, तो ये भी अच्छा नहीं है। ये सारे एटीट्यूड बेकार हैं। ये आप जब रिसर्च मैथोलॉजी में, आप जब टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे, ये सारा जो है ना आपको ये मिलेगा। आपको टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। टीचर हर ऐसा नहीं कि हमेशा हर चीज को नेगेटिव बोलता रहे, ये नहीं ठीक है वो ठीक नहीं। टीचर को हमेशा ये होना चाहिए कि चीजों को हमेशा सेग्रीगेट कर पाए। हाँ, दीज आर द ऑल आर द नेगेटिव थिंग्स, दीज आर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। तो आपको ये चीज समझना होगा, एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट एटीट्यूड आप किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। अगर आपके एडमेंट एटीट्यूड है टीचर का या किसी स्टूडेंट का, तो कभी बात ही नहीं बन पाएगी आपस में, कभी हो ही नहीं पाएगा। तो सेंटर से रिसीवर तक कभी ये पूरा परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। फिर क्या होना चाहिए, नॉलेज फर्स्ट, आफ्टर दैट नॉलेज। नॉलेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको लगेगा कि हाँ हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है, नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं, विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट एग्जिस्ट, यू कैन नॉट एग्जिस्ट इवन द वर्ल्ड। ओके, नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप परफॉर्म कर रहे हो, आपने बिलीव किया, फिर आगे अपने आपने 1 से लेकर 12 तक पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन किया, ये क्या है, सब ऑल आर पार्ट्स ऑफ द नॉलेज। एंड व्हाट इज द सोशल सिस्टम? अब इसके बाद ये सोशल सिस्टम समझना, सोशल सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस तरीके से ये काम करता है। सोशल सिस्टम आपको समझना पड़ेगा कि अब किस तरीके के लोग वहां रहते हैं, किस तरीके का ऑडियंस है, क्या कल्चर है। इस तरीके से हम चीजों को, अगर हम सपोज मान लो कहीं वहां हमें पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अगर हमने कुछ नेगेटिव पॉइंट बोल दिया वहां पे और उसके उसके ऑडियंस है नहीं, तो उस चीज का क्या होगा, फिर ये चीजें अगेंस्ट हो जाएगा। तो सोशल सिस्टम हमें, हमारा पर्पस क्या है, मैसेज जो है ना, मैसेज को जो है ना रिसीवर तक पहुंचाना है। तो ये सारा प्रोसेस है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको नेट के एग्जाम में भी आएगा, और ऐसे आपके के एग्जाम में भी काम आएगा। अब आते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अकॉर्डिंग टू ये आप लोग देख लेना, सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एबिलिटीज encompassing the reflective discovery of the ये सारे ये मैंने बनाया है इसमें, इसे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग को समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है अभी तक? एनीवन? आप कुछ इंटरेक्ट करो मुझसे। If you have any doubt, you can raise your hand. You can ask directly. कुणाल? सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। आप लोग हो ऑनलाइन या आप लोग म्यूट करके बस बैठे हो? नहीं सर, सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। निखिल राजपूत, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आप लोग हो ऑनलाइन ना? मुझे आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट बीच बीच में किया करो, या कुछ को डाउट हो तो पूछा करो। नहीं सर, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे ना, आप फ्लो में थे इसलिए डिस्टर्ब नहीं। अच्छा, अगर आपको कुछ डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, ओके, यू कैन आस्क डायरेक्टली एंड यू रेज योर हैंड। ओके, आप लोग को ऐसा नहीं है डिस्टर्ब होगा या कुछ नहीं, आप डायरेक्टली, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब ले चुका है, क्लास में मैंने पढ़ा चुका है, इसलिए आप लोग
कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको अभी भी डाउट सोचते हो कि नहीं ये यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं, आपको लगे कि हाँ मुझे नहीं यूनिट 3 यूनिट 4 कुछ भी आप डिस्कस करना हो, यू आर फ्री। ओके, मैं अब इसको नेक्स्ट अभी कंप्लीट करता हूँ आगे, क्योंकि हमारा अभी और भी चीजें रह गई है और टाइम बहुत कम है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, क्या है ये आप लोग देख लेना में है ये। और ये क्या है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, हाउ इट इज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेसी, क्या क्या है, टूल लिटरेसी है, रिसर्च लिटरेसी है, पब्लिशिंग लिटरेसी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिटरेसी है, ट्रेडिशनल लिटरेसी है, बिजनेस लिटरेसी है, विजुअल लिटरेसी है, इतने सारे लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है। आपने इसमें 2 ही 4 सुना होगा, डिजिटल लिटरेसी सुना होगा, मीडिया लिटरेसी सुना होगा, लाइब्रेरी लिटरेसी सुना होगा, लेकिन देखिए आप इतने सारे लिटरेसी से आप कर सकते हैं। वर्क प्लेस लिटरेसी, लाइब्रेरी, वर्क प्लेस लिटरेसी क्या है, अब आप वहां पर जब तक आप मान लो सपोज आप एज ए लाइब्रेरियन लग गए वहां पर कहीं नौकरी आपकी लगी, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ आपको करना क्या है, आपको किस तरीके का अवेयरनेस होना चाहिए एज ए लाइब्रेरियन, आपको क्या चीज आनी चाहिए, ये भी लिटरेसी है ना। सारी चीजें जो है ना आपको, ये आप लोग ये देखो, ये आपको मिलेगा नहीं चीजें जो मैंने पीपीटी में डाला है, कुछ आपके बुक्स में भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ से चीजों को आपको एज ए हेडिंग आपको लेकर उसको आपको एग्जाम में जब आप लिखोगे ना तो ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे वहां पर। ठीक है, तो आपको जैसे होता है ना एग्जाम में आप जब अपियर होते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम इसमें पॉइंट क्या डालें। तो जो है ना ये कल मैं क्या कोशिश करूंगा कि आपको ये भी मैं बताऊंगा कि एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है। कल हमारा जो क्लास एक और क्लास है तो उसमें ये भी मैं डिस्कस कर लूंगा कि आप लोग पॉइंट वाइज कैसे डिस्कस करोगे। बहुत ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि किसी को कुछ आता भी नहीं एग्जाम में वो कैसे परफॉर्म करेगा एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट ये है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये किस तरीके से क्या काम करता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी में, क्या इंफॉर्मेशन फ्लुएंसी, यूजर एजुकेशन, बिब्लियोग्राफी इंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, इंफॉर्मेशन कॉम्पिटेंसी, यूजर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ स्किल मॉडल है। अब ये जैसे ये है, अगर आपको इसको एग्जाम में ना ऐसे आप ड्रॉ कर दोगे ना तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेगा। ये है प्लस मॉडल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मॉडल क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल आईटी डेवलप by Jesse Higgin 1996 at Scotland. This model incorporates basic elements of information literacy skills and also add emphasize on thinking skills of self evaluation. क्या क्या इससे क्या है, फोर स्टेजेस मॉडल क्या क्या है, लोकेशन, यूज एंड सेल्फ एवल्यूएशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं डायलॉग मॉडल क्या क्या है। डायलॉग मॉडल इज डेवलप्ड बाय इन्फोयो का आपने देखिएगा यूजफुल क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 phases, define, locate, organize, guide users and evaluate। क्या है, आपके नाम में ही पूछा जाता है, ये आपको जानते हैं ऐसे करके इसको दे देगा कि अरेंज करो इसको नेट के एग्जाम में। और आजकल जो है ना नेट एग्जाम में अरेंज के सिस्टम, अरेंजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन का क्या है कि आपको डिटेल थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी, क्यों अगर इसको नहीं और समझ के आप करोगे ना तो इजीली वहां पर याद करने की जरूरत नहीं, आप चीजें कर सकते हो बहुत इजीली। क्या 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या क्या है, इसका ऑनर ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो आपके एग्जाम में आना ही आना है, में आपके ये एसओएल में भी आ सकता है, यूजीसी नेट के लिए तो इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप, फिर उसके बाद क्या उसकी प्लान करते हैं, फिर क्या इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं, फिर इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद आफ्टर मैनेज, एंड देन आफ्टर जब मैनेज कर लेते सारी चीजों को, क्या हमें डिस्प्ले करना है क्या नहीं करना है, अननेसेसरी चीजें हटा देनी है उसमें से, ये सारे मैनेज के पार्ट्स आते हैं। एंड लास्ट वन इज द प्रेजेंट, इसको फिर हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये पीपीटी है मेरा, तो पीपीटी मैंने बनाया होगा तो पहले आइडेंटिफाई किया होगा कि हमें क्या पढ़ाना है आज, फिर क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करनी है, फिर स्कोप क्या है, उसको पढ़ाने के स्कोप क्या है, फिर उसकी प्लान बनाना है कि हाँ
पीपीटी हमें इतने मिनट डिस्कस करना है, फिर ये डिस्कस करना है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है, इसी में रिवीजन सारी यूनिट्स करानी है, भी लेने हैं, तो ये सारी प्लान हमें बनाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा, फिर हमें वही पीपीटी में डालना पड़ेगा जो चीज आपकी नीड हो। अननेसेसरी चीज मैं सारी चीजें मैं कॉपी पेस्ट करता रहूं तो कोई इसका यूज नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं पीपीटी में एज इट इज कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ द पीपीटी। आपको क्या करना है, आपको पीपीटी बुलेट फॉर्म में होता है हमेशा। आपको जो है ना बुलेट फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा चीजें आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप सब चीज लिखने वो तो नोट्स बन जाएगा ना। पीपीटी इज द डिफरेंट थिंग, नोट्स इज द डिफरेंट थिंग। तो आपको पीपीटी को नोट्स नहीं बना देना। बहुत लोग पीपीटी को नोट्स ही बना देते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। तो उसमें फिर गैदरिंग करते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि ये सही है गलत है, फिर उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, सारी चीजों को मैनेज करते हैं कि हाँ हमारे ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए टाइम। फिर उसको आज मैंने प्रेजेंट कर दिया इसको, तो ये प्रेजेंट हो गया ये। फिर क्या है, ये 8Ws मॉडल, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल बाई एनिटी लैम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जितने मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, आपके नेट के, जिसको नेट के एस्पिरेंट हैं, जो चाहते हैं नेट के एग्जाम निकालने के लिए, ये सारे आप लोग पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये आप देख लोगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको अरेंज करने के लिए आते हैं, ये क्वेश्चन ये याद कर लेना। वॉचिंग है, वॉन्डरिंग है, वेबिंग है, विगलिंग है, वीविंग है, रैपिंग है, वेबिंग है। अब बताओ इसको आप याद नहीं करोगे, इसको समझोगे नहीं समझ के, तो अरेंज कैसे करोगे एग्जाम में। ऑप्शन वो दे देंगे, ऐसे ही करके सब कुछ लिख देंगे, आप अरेंज करो इसको। तो ये जो है ना, आप एकदम बिल्कुल लर्न कर लेना है इसको। ये समझ लो ये क्वेश्चन यहाँ से नेट के लिए लीक हो रहे हैं, ऐसा मान के चलो आप। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस फॉर द नेट JRF, आई एक्चुअली आई शेयर। और मेरे जो पुराने जो स्टूडेंट हैं, जो हमने फिजिकल मोड में क्लास किया है, तो उसमें हमने यही सब डिस्कस किया है एग्जाम, आपके एग्जाम के पर्पज से और आपके उसके पर्पज से। इससे क्या होता है कि दोनों चीजें ना, आप चीजों को नेविगेट कर पाओ, कोलैब कर पाओ चीजों को। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार आप एसओएल पढ़ने, एसओएल क्या, हाँ चलो एसओएल पढ़ लेते हैं, लेकिन आप नहीं, ये जो सिलेबस पूरी तरीके से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, ये आपके नेट के हिसाब से, जो नेट में जो आते हैं, मतलब हमारा तो देखा जाए तो यूजीसी है सबको जो गाइड करती है सारे सिलेबस, और उसके तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है सब चीजें। ठीक है, तो आपको हर चीज को ना उस तरीके से लेना है। ठीक है, अब ये है बिग इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, माइक एसेनबर्ग एंड बॉब बैरकोइट्स ऑफ यूएसए इन 1990। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब 100% है ये। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, हाँ अभी टाइम है, ओके। तो ये इसमें देखो, ये याद कर लेना, टास्क डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी, लोकेशन एंड एक्सेस, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। देखो ये सारे जो इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर है ना, सब कुछ जो है ना, सबके मॉडल एक ही है, लेकिन पर्पज एक ही है। क्या है पर्पज, उसकी सीकिंग बिहेवियर यूजर्स के। ये ऐसा समझो, अगर यूजर्स का जो है क्या वो लेना चाहता है, सबके थिंकर के अलग अलग जो है ना मॉडल, सबने अपने अलग अलग मॉडल दे रखे हैं। तो उस क्या क्या मॉडल में क्या क्या कहा गया है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कैसे समझ के उसको लर्न करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये जो है हमारा जो है ना, एक ये मॉडल है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये मॉडल क्या है, ये इंफॉर्मेशन बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये मैंने ये थोड़ा सा ये डिफरेंस किया हुआ कि बिहेवियर क्या है और लिटरेसी क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। आप देखोगे यहाँ पर ये IL है, IL यानी क्या है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये पूरा जो पार्ट है, ये इसके हाफ पार्ट, ये पूरा इंफॉर्मेशन लिटरेसी को डिपिक्ट करता है। और ये क्या है, इंफॉर्मेशन बिहेवियर को, ये हाफ पार्ट जो है डिपिक्ट करता है किसको, इंफॉर्मेशन बिहेवियर को डिपिक्ट करता है। तो आपको समझना पड़ेगा इस पार्ट को, यानी ये पूरे पार्ट को, और ये वाले पूरे पार्ट को, यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी और ये इंफॉर्मेशन बिहेवियर। तो क्या है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, चेंजिंग इंफॉर्मेशन बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन बिहेवियर। इसमें कैसे कैसे काम करता है, इंफॉर्मेशन नीड्स, इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड यूज, रिसर्च आउटकम्स, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत पिक्चर इजी है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये समझ लो ये हाफ हाफ है,
और इसको डिफरेंस करना जाना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग एक जैसा लगेगा इंफॉर्मेशन बिहेवियर और इंफॉर्मेशन लिटरेसी, नहीं, दोनों में ब्रॉड एकदम कंपैरिजन है, ये इस पिक्चर को डिपिक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसमें ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये 2 क्वेश्चन है। लिटरेसी डे कब हम जो है ये करते हैं, सेलिब्रेट कब करते हैं, और द फेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज फर्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर ढूंढ लेना इसको, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और देखो ये तो हमारा रहा, ये यूनिट ये रहा हमारा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये है हमारा जो सिलेबस है, ये आपका जो सिलेबस है, हमने डिस्कस किया है व्हाट इज द टुडे डिस्कस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड यूजर स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। इसमें एक चीज जो है ना, एक चीज इसमें यूजर बिहेवियर जो है हमारा, ये रह गया यूजर बिहेवियर। ये हमारा यूजर बिहेवियर है, ये मैं इसको तुरंत आपको इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यूजर बिहेवियर में व्हाट इज द यूजर एंड यूजर स्टडीज, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूजर कौन कौन से होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, बोरोवर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ये आपके हो गए इसमें। अब ये डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस आप कुछ देख लेना कि जो है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइन चार्ट का जो है ना, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना इसको, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आता है और नेट के भी एग्जाम में भी आता है ये। फिर जेडी बर्नाल के भी इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर जेडी बर्नाल के भी जो क्लासिफाई इन्होंने किया ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना। फिर टाइप्स ऑफ यूजर कौन कौन से होते हैं, जनरल रीडर, सब्जेक्ट रीडर, ये सारे आपके लाइब्रेरी के उस पे पर्सपेक्टिव पे है, लेकिन आप जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, जो है गूगल के पर्सपेक्टिव से या ब्लॉग आप बना रहे हो, उसके यूजर डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन एक अगर देखा जाए तो ये अगर इसको उससे रिलेट किया जाए तो बहुत सारे इसमें मैच करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, ये आपका बेस है। ये क्या है, जनरल रीडर्स है, सब्जेक्ट रीडर्स है, स्पेशल रीडर्स है, नॉन रीडिंग यूजर्स है, नॉन यूजर्स है, ये आपके ये हो गए। ठीक है, अब इस नेक्स्ट वन ही क्या है, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे ना कि यूजर्स कैसे हैं, यूजर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर वाई इज इम्पोर्टेंट ऑफ यूजर स्टडीज, ओके, एंड नीड्स ऑफ यूजर स्टडीज, एंड व्हाट इज द प्लानिंग, हाउ द प्लानिंग फॉर द यूजर स्टडीज, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपके एग्जाम है और आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप लोग बैठ के प्लानिंग कर ही रहे होंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए। जो आपके जो लास्ट सेमेस्टर में जिन्होंने मार्क्स अच्छा गेन किया है, वो उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजी अलग होगी, वो सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं अलग थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा ताकि मैं अच्छे मार्क्स गेन कर पाऊँ, ताकि मुझे मेडल मिले। तो क्या है ये सब वही प्लानिंग के पार्ट है। तो क्या है, ये यहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ती है, यूजर्स के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये सब आपको जो है प्लानिंग का है। फिर क्या है, मैथोलॉजी टेक्निक्स, क्या क्या मैथोलॉजी है, किस तरीके से हम लाइब्रेरी में जो है ना अपने यूजर्स को कनेक्ट कर पाए, और यूजर्स के जो इंफॉर्मेशन है जो उनको चाहिए, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया। अब जैसे सपोज दिल्ली में कोई जो बैठा हुआ है और एक जो केरला में बैठा हुआ है, हर का एक डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है यूजर्स को। तो आप ऐसा नहीं है कि हर लाइब्रेरी एक तरह काम है, आपको समझना होगा कि हर लाइब्रेरी अपने अपने रीजन, अपने अपने कल्चर, अपने अपने फील्ड, अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, हर चीज के लिए अलग अलग है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो लाइब्रेरी होती है, स्कूल लाइब्रेरी अलग होती है, एकेडमिक्स लाइब्रेरी अलग होती है, स्पेशल लाइब्रेरी अलग होती है, ये सब सारे जो है लाइब्रेरी की ये मेजर पार्ट है। लेकिन रीजनल, एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी किस तरीके से काम करता है, ये उसके यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आसपास के एरिया में अगर मान लो यूपीएससी के एस्पिरेंट रहते हैं, लेकिन हम यूपीएससी के हिसाब से बहुत सारे जो बुक्स होती हैं उस तरीके के अगर हम नहीं रखते, उसको नहीं कोई उसका यूज नहीं है, दीज आर द यूजलेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे मेथड्स को ना ये आपको यूजर्स के लिए करना पड़ेगा। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी हमारे यूजर्स पे ही जिंदा है। अगर लाइब्रेरी अगर हम यूजर्स विदाउट यूजर्स अगर लाइब्रेरी चल रही है तो लाइब्रेरी डेड है। क्या है, डेड है। तो इसलिए हमें यूजर्स को हमेशा कनेक्ट रखना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड। तो क्या है, ये हम जब उसकी अगर प्लानिंग करते हैं, इसकी मेथोलॉजी यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो दीज आर द एंड नाउ
functional categories of users by Professor J.D. Bannal. ये users जो है ना, ये J.D. Bannal का दिया हुआ है, क्या है? Worker in fundamental research, worker in applied research technologies, writers of reports, scientific and technical journalists, interested public, historian of science. So ये एक तरीके का इनका जो है बर्नाल का है। ये क्या है? J.D. बर्नाल का यूजर्स का इन्होंने एक ग्रुप बनाया था कि क्या क्या किस तरीके से यूजर्स हो सकते हैं। तो व्हाट इज दीज आर द यूजर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर, टेक्नोलॉजिस्ट, बिजनेस मैनेजर। एंड इफ यू कम इन अंडर द साइंटिस्ट, कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिसिस्ट, केमिस्ट हो सकते हैं, बिजनेस मैनेजर, टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर। दीज आर द ऑल द यूजर्स। दिस इज डिफाइंड बाय द प्रोफेसर J.D. Bannal. And another is the important part of the which kinds of users? The potential users, one who needs the information which can be provided by specific services. फिर expected, what is expected users? One who is known to have the intentions of using certain information services. Actual user, beneficiary users. And now it is a very important, Ranganathan has grouped users. These are the very important: freshmen, ordinary inquirer, specialist inquirer, general readers. ये आपको जो है ना होगा, ये फ्रेशमैन को बोलते हैं, ऑर्डिनरी इंक्वायरी को, ये सब मैंने बता चुका है। ठीक है, ये आपको है ना, ये आपको समझना होगा। और ये आपके नेटिक इंपॉर्टेंट फ्रेशमैन किसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी इंक्वायरी किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूजर कैरेक्टरिस्टिक। तो यूजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फिर स्टेज इन द इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। फिर नेक्स्ट एनवायरमेंटल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक, कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फिर अब नेक्स्ट इज द मेथोडोलॉजी। क्या है मेथोडोलॉजी? फॉर द पर्टिकुलर लाइब्रेरी, पर्टिकुलर यूजर्स, पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस, किस तरीके से हम कर सकते हैं टारगेट, किस जनरल और कन्वेंशनल मेथड। यानी जो हमारा जो एक जनरल है, जो कि पहले से काफी चला आ रहा है, क्या है वो? क्वेश्चनर मेथड। आप जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट डिजिटेशन बना रहे हैं, तो क्वेश्चनर मेथड से आप जो है डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, if you have an audience and you want to meet to physical mode and you want to connect with physical mode and want to data connections through the interview, so you can direct connect to your physical mode and you can direct take interview for the users. Okay, next is diary method. You can use the diary method. And next is the observation by self. If you go in library and you can observe whatever is the going on in the library, you can observe and you can collect the data and you can describe the data in your research. So these are the things. And operational research study, you can use like you can particular find the particular things through a operation. So this is operation research study. Indirect method is, it means आप जैसे आपने उसमें आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स आपको पता ही है किस तरीके से, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लेते हैं, गवर्नमेंट कैसे लेती है। तो इस तरीके से इसमें भी है इनडायरेक्ट मेथड। किस तरीके से? एनालिसिस ऑफ बाय लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। हम ये क्या करेंगे? लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। देखिए, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तीनों, ये आपके नेट में भी इंपॉर्टेंट है। आपको बोलेगा ना कि इनडायरेक्ट मेथड, चूज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेक्निक्स ऑफ यूजर स्टडीज। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, या आपने अगर पढ़ा भी है तो उसको समझा नहीं है, केवल रट के आए हुए हैं, तो आप फिर वहां पर डेटा को फाइंड नहीं कर पाओगे, ऑप्शन को लगा नहीं पाओगे। तो आपको समझना होगा इनडायरेक्ट मेथड क्या है। एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड, इट मींस हम आपने देखा होगा एक्सेशन रजिस्टर होते हैं, फिर आपको यूजर्स के रजिस्टर होते हैं, कौन कौन से यूजर्स, वहां से हम एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे किस तरह के यूजर्स आते हैं। फिर साइटेशन एनालिसिस है, फिर ठीक ना, ये इस तरीके के सारी चीजें हैं। फिर स्पेशल एंड अनकंडीशनल मेथड क्या है? कंप्यूटर फीडबैक हम ले सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह मॉल में या कहीं आपको, आपने फ्लिपकार्ट पे परचेज किया कोई चीज, तो क्या उसमें एक फीडबैक आता है कि 5 स्टार दे दीजिए, ये दे दीजिए, आप अगर कुछ लिखना चाहते हो तो इस पे आप फीडबैक दे दीजिए, गुड एंड bad feedback if you have. And also you can see that if you want to purchase anything, so first you see the product, and then after you can scroll the things, and you can see the what is the what about the users
and what is the feedback of the users, and how many stars, how many ranked by the users, then you can then you purchase the things. Okay, so these are the feedback things. Okay, unconventional methods, so these are the method. Okay, so now user studies, user education कैसे करेंगे आप? इसमें बहुत सारे यूजर एजुकेशन में आपको यूनेस्को भी बता रखी है, ठीक है। यूनेस्को के डेफिनेशंस अलग हैं। यूनिसिस्ट प्रोग्राम चलाती है, एक यूनिसिस्ट प्रोग्राम है जो कि यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है। 1976 में पहला सेमिनार हुआ था। फिर पहला जो है इसका 1979 में लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन और न्यू अप्रोच नीडेड, ये इस तरीके के हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ यूजर एजुकेशन क्या है? लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, बिब्लियोग्राफी इंस्ट्रक्शन। फिर क्या है? अकॉर्डिंग टू मेलविल जे बजट, ये जो है ना, ये जितने चीजें है ना, आप समझ लो आपके बुक में कुछ भी इसमें जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके बुक में नहीं मिलेगा। ये आप अपना सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीडे अप्रोच, एग्जॉस्टिव अप्रोच, कैचिंग और ब्रशिंग अप अप्रोच। मैं ज्यादा डिस्कस इस पे नहीं करूंगा because time is very limit. Okay, and you can find out from the directly from your books, and you can directly Google, then you can search and you can get all information whatever I discuss. Okay, next info. Okay, so now it is over. So if you now we will ask if you have any doubt, whatever today we discuss, and I'm trying to discuss to make you understand. So you can directly ask me. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। कुणाल, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ जी सर। कुछ प्रॉब्लम आ रही है यूनिट 1 और नहीं, यूनिट नहीं, 2 में? क्योंकि नो सर। क्योंकि कल हम डिस्कस, लास्ट क्लास है, कल हम यूनिट 3, 4 और 5 ये तीनों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ठीक है बहुत सर। जल्दी हाँ बहुत जल्दी ये रिवीजन में हो जाए, ताकि आप लोग जो है ना और कुछ मुझसे पूछ पाए। और कोई है जो किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो इस यूनिट में, या अदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस आप डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। है किसी को प्रॉब्लम? यस या नो? आप लोग कुछ तो बोलो। आप लोग नो सर। कुछ नहीं प्रॉब्लम है? और किसी को? तो हम लोग क्लास को रैप अप करें, खत्म करें। Yes, sir. यस सर। ओके, सो कल हम लोग मिलते हैं दोबारा से, ठीक है। और हम लोग यूनिट 3 और 4 और 5 करेंगे। और कल मैं डिस्कस और भी चीजें करूंगा कि आप लोग कैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से आप एग्जाम में अपीयर होगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ले आ पाओ, ठीक है। बहुत लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया है और फिजिकल मोड में, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये आप लोग को ये आप लोग बहुत अच्छा एसओएल की तरफ से दिया जा रहा है कि जो रिवीजन क्लास, जो जिन्होंने अब तक क्लास नहीं अटेंड किया है उनके लिए एक ओवरव्यू मिल जाए, ताकि वो बहुत सारी चीजों को कर पाए। ये ऐसा होता नहीं है कहीं भी जो है आप कॉरेस्पॉन्डेंस में करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है। Yes, sir. सो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। सर लीव करें क्लास? हाँ, आप क्लास लीव कर सकते हैं। जी सर, राइट सर। Okay, thank you everyone. We will meet again tomorrow.